his disciples the fundamental concepts of Dhamma at Sarnath. With scholars and monks traveling from India, the Buddha's teachings spread afar over the centuries, first to Southeast Asia, then through Central Asia to China and the rest of East Asia. India, known as Anudavipa or Jambudvipa in Sparta, the birthplace of Lord Buddha. India has a rich heritage reflecting a glorious past in almost all spheres of life, more so in spirituality. If we delve into the rich ancient Buddhist literature of the various traditions, we find a panoramic view of India of the 6th century BCE and later period, particularly of the area known as Madhyam Des or Middle Land, which consists of the places where Buddha Dhamma originated and developed. A number of heritage sites of importance to the Buddhist faith, such as Bodh Gaya, Sarnath, Kushinagar, Sankisa, Shravasti, Vaishali, Rajgir, and Nalanda, among others, are all spread out in India. The Buddha Dhamma has been a significant cultural and religious bridge, Dham Setu, between India and Southern Asia, encompassing countries like Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. The Mauryan Emperor Ashoka sent 9 missionaries of the elders to preach the Dhamma in various states and foreign countries as Dhamdut. Of these, the first mission, headed by the elder Mahindra, son and daughter Sanghamitra of King Ashok, himself carried the message of the Buddha Dhamma to Sri Lanka. In Southeast Asia, Buddhism began to flourish from the 3rd century BCE onwards. Emperor Ashoka's Dhamdut were instrumental in establishing Buddhist communities in modern-day Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, and Vietnam. Likewise, the archaeological record of countries like Indonesia, Singapore, and Malaysia points to trade as the primary factor in the spread of Buddha Dhamma. The Buddha Dhamma flourished to Central and East Asia along the Silk Route, facilitated by Indian monks like Kashyap Mattan and Dharmaratna in the 1st century CE. Bodhidharma is revered as the father of Chan Buddhism in China, and Kumarjiv translated Buddhist texts and taught the Dhamma. Later, several monk scholars like Xuanzang and Yixing traveled to India and studied at the Nalanda University, which produced eminent Buddhist masters. Among them, Acharya Shantarakshit, Acharya Kamalashil, Acharya Atish Dipankar, and many others played a crucial role in the dissemination of Buddha Dhamma. As Buddhism travels along the Silk Road, it's adapted to different cultures, resulting in emergence of unique traditions such as Theravada in Southeast Asia and Mahayana in East Asia and Central Asia. The Silk Road not only promoted trade, but also the exchange of religious and cultural ideas. Monks, pilgrims, and traders played vital roles in this process. The Sakas and the Kushanas, as well as Indian merchants, had carried elements of Indian culture with the Buddha Dhamma to different states of Central Asia around
the 1st century CE. धम्म को उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं और धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और एक बार फिर से मैं इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2026 जो कि कुशीनगर में हो रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। ये आज दूसरा दिन है इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का। यह पावन भूमि जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, विश्व भर के श्रद्धालुओं और विचारकों के लिए शांति, करुणा और ज्ञान का केंद्र रही है। इस सम्मेलन में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। विभिन्न देशों से आए विद्वानों, भिक्षुओं, नीति निर्माताओं और प्रतिभागियों का यह संगम न केवल बौद्ध दर्शन के प्रचार प्रसार का अवसर है, बल्कि वैश्विक शांति और सहयोग को भी सुदृढ़ करेगा। आज के समय में जब विश्व में अनेक चुनौतियां जैसे तनाव, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक असमानताएं चल रही हैं, ऐसे सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध विचारधारा के मूल सिद्धांत मध्यम मार्ग, करुणा, अहिंसा, आत्मचिंतन मानवता को एक संतुलित और शांतिपूर्वक दिशा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच विविध संस्कृतियों के बीच समझ, सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देता है। हम आशा करते हैं कि यहाँ आए हुए सभी प्रतिभागी इस सम्मेलन का में न केवल विचार विमर्श का माध्यम से अपने आप को इनरिच करेंगे, बल्कि विश्व शांति और सतत विकास की दिशा में ठोस पहल को भी प्रेरित करेंगे। आपकी सहभागिता के लिए पुनः धन्यवाद। And now for my friends, those who have joined us from all across the globe, and we have a lot of delegates and monks coming from various countries across the continent, from New York, from Japan, from Indonesia, from Malaysia, from people coming all the way from Thailand. I welcome you all to this 3 days of International Buddhist Conclave 2026. And a very warm welcome once again. This conclave is happening in Kushinagar, which is a sacred land of Lord Buddha's Mahaparinirvana. As Buddha said, peace comes from within. Do not seek it without. May this gathering reflects the spirit of peace, wisdom, and compassion. And I wish that these coming 2 days now of this conclave will be truly fruitful, inspiring, meaningful for all of you, and most importantly, it brings peace to you and peace to the world. I have a very small message from our Minister of Tourism and Culture, Shri Jaiveer Singh Ji, who could not be present here today in person, and I have his message over this video. Just hear it out, and he's here to always back us up. He's there to always cheer us up and support us on behalf of the government of UP in whichever way possible. Please message चलाएं. पावन स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2026 का 3 दिवसीय आयोजन धम्म, संवाद एवं विकास की थीम पर आधारित करने का काम उत्तर प्रदेश पर्यटन की छत्र छाया में वहां के जिलाधिकारी जी और उनके प्रशासन के माध्यम से आयोजित हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, पूरी दुनिया को हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी एक संदेश देने का काम करते हैं कि जहां एक और दुनिया में युद्ध दिया है, वहीं भारत ने
बुद्ध दिया है, ये संदेश देने का काम किया है। भारत की पावन भूमि से जाने वाला संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और बौद्धिज्म फिलॉसफी और टीचिंग दोनों के आधार पर आज दुनिया में शांति, अमन, चैन कायम हो सकता है। प्रेम, करुणा का वातावरण स्थापित हो सकता है यदि बुद्ध के विचारों को हम लोग धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। हमें खुशी है कि लगभग 2000 बौद्ध भिक्षु और 300 अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के साथ एक बड़ा आयोजन पावन बौद्धिस्ट डेस्टिनेशन कुशीनगर की धरती पर सफलतापूर्वक आयोजित करके हमारे जिला प्रशासन के द्वारा बेहतरीन व्यवस्था के साथ ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। हालांकि मुझे इस कार्यक्रम में स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का बहुत मन था, लेकिन किन्हीं विशेष कारणों से मैं हाजिर नहीं हो पा रहा हूं। मेरी ओर से पर्यटन विभाग के सभी अधिकारियों को, डीएम सहित सभी उनके प्रशासनिक टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस सफल कार्यक्रम के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफल होगा, बुद्ध के विचारों को दुनिया में फैलाव मिलेगा। और भारत में उत्तर प्रदेश की पावन धरती, जहां सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बुद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में, यहाँ विश्व भर के लोग, विदेशी मेहमान, खास रूप से जिनकी आस्था निष्ठा बौद्धिज्म में है, वो आकर के जरूर यहाँ के तमाम स्थलों का भेंट करेंगे, अवलोकन करेंगे और बौद्ध के विचारों को जानने के लिए, उनके अवशेषों को देखने के लिए ये जरूर पधारेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ऐसे सभी बौद्ध भगवान से जुड़े हुए स्थलों को विकसित करने का, बेहतरीन कनेक्टिविटी देने का, बेहतरीन पर्यटन सुविधाएं विकसित करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कर रहा है। कनेक्टिविटी को भी, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, पूरी तरह व्यवस्थित और आधुनिक करने का काम हमारी सरकार, भारत सरकार और प्रदेश की सरकार ने मिलकर किया है। मैं समझता हूं कि आज ये सब आकर्षण का केंद्र है और इस आकर्षित करने का काम करेंगे। देश और दुनिया के जो भी बुद्ध अनुयायी हैं वो आकर के इन स्थलों का जरूर भेंट करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है, अनुरोध है। और मैं समझता हूं कि 3 दिन का ये कॉन्क्लेव उम्मीद के अनुसार सफल होगा, इसका उद्देश्य सफल होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं व्यक्तिगत रूप से कुशीनगर के जिलाधिकारी जी को, जिनने ये अपने स्वयं के पर्यवेक्षण और देखरेख में बेहतरीन आयोजन कराने का काम किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, this was a message from Shri Jaiveer Singh, who is the Minister of Tourism and Culture, Government of Uttar Pradesh. He could not be here today in person, and he wanted to share how UP government is helping all the people who want to be the part of this Buddha circuit and how they are working on the infrastructure, building opportunities both for the tourism and empowering the local people here for the employment and other opportunities. So this was his short, brief message for all of you. And we are waiting for our delegates to arrive shortly. And in the meanwhile, I would like to share how this first session today has enriched all of us with information of interesting and great initiative that the government is taking. In fact, in last session, one of the speakers, he shared that how agriculture waste, जिसे हम लोग प्रणाली बोलते हैं, उसको इकट्ठा करके how they are using that agriculture waste and making CNG out of it, and each plant is contributing to over 45,000 households, helping them in cooking as a cooking gas and everything. So this was a lot of initiative that the government is taking.
की आत्मा उसकी आध्यात्मिक चेतना में बसती है। जब शांति, करुणा और सह अस्तित्व के विचार आपस में मिलते हैं तो मानवता के साथ संपूर्ण विश्व प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है। भगवान बुद्ध ने इसी करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश देकर मानव जीवन को नई दृष्टि प्रदान की। कुशीनगर वही पावन भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और अपने विचारों से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। मैं श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन हमारे बीच श्री विजय कुमार दुबे जी जो कि एमपी हैं, कुशीनगर के पधार चुके हैं। मैं अभी आप सभी से कहूंगी एक जोरदार तालियों के साथ आप श्री विजय जी का स्वागत करें। और साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पे शोभित मोहन दास जी जो कि ओनर है ताज गोरखपुर में जो ताज होटल खुल रहा है। और इसी के साथ हमारे बड़े ही फेवरेट मिस्टर प्रतीक हीरा जी जो चेयरमैन है फिकी के, मैं उनको चाहूंगी आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पे। जोरदार तालियां इन तीनों लोगों के लिए जो आज अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए। और इसके बाद हम जो सेशंस करेंगे इनमें हम सुनेंगे इनकी विचारधारा के बारे में, ये अपनी नॉलेज शेयरिंग करेंगे एंड वी लर्न अबाउट देम हाउ दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ कुशीनगर, बेटरमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कनेक्टिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद दीज places of Buddha's relevance. So thank you so much all of you for being here on stage today. मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री विजय कुमार दुबे जी एमपी कुशीनगर के कि वो मंच पे आएं और अपने 2 शब्दों से हमारा सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां विजय दुबे जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आने के लिए। आप सर वहां पे दो 2026 इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव के समस्त आयोजन के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित अतिथि के रूप में श्री शोभित अग्रवाल जी, फिक्की ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधक और सामाजिक क्षेत्र में अपना हमेशा से योगदान रखने वाले डॉक्टर रवि सिंह जी, इस आयोजन में उपस्थित अतिथिगण के रूप में सभी गणमान्यगण, सामाजिकता निभाने वाले सभी हमारे युवा साथीगण और बौद्धिस्ट अनुयायी के रूप में सभी हमारे भंतेगण, बड़े प्रसन्नता का विषय है कि हमारे कुशीनगर लोकसभा की धरती कहें या जिला, पहली बार बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन और बड़े सफलता के रूप में कुशीनगर जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। पूरे दुनिया में शांति का संदेश देने वाले हमारे इस भगवान बुद्ध के महा परिनिर्वाण की ये धरती है। भगवान बुद्ध ने पूरे दुनिया को हमेशा शांति का संदेश दिए, करुणा का संदेश दिए, मैत्री का संदेश दिए। आज पूरे दुनिया के
भौगोलिक स्थिति को देख लें, कई देश एक दूसरे पर नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज आक्रमण के तरह तरह के विधाएं उपयोग करते हुए हम लोग आज कई माह से टीवी पर देख रहे हैं। दर्जन भर देश से ज्यादा इसमें भूमिका निभाकर अपने विकास के रास्ते को अवरोध तो कर ही रहे हैं। कितना जन की हानि हो रहा है, कितने निर्दोषों के खून बहाए जा रहे हैं, कितने युवा बच्चों के सपने को मिट्टी में मिलते पूरी दुनिया देख रहे हैं। आज के समय में पूरे दुनिया को इस बात का एहसास हो रहा होगा कि आज दुनिया को युद्ध की आवश्यकता नहीं, भगवान बुद्ध के उस संदेश की आवश्यकता है। हमारी ये धरती कहीं न कहीं भगवान बुद्ध का परिमहानिर्वाण स्थल तो था, लेकिन इस कुशीनगर का स्थान पूरे दुनिया में वो स्थान कभी नहीं मिल सका। आज ऐसे आयोजनों के माध्यम से हमें लगता है कि जब कितने देशों के बौद्ध धर्म के अनुयायी इस धरती पर आए हों, जैन धर्म के अनुयायी इस धरती पर आए हों, और सनातनी के रूप में तो निरंतर सबकी सहभागिता हो ही रहा है, तो हम समझते हैं सबके समागम से जो संदेश पूरे इस राष्ट्र की धरती पर कुशीनगर जिला प्रशासन ने देने का एक माध्यम बना है कि आज आवश्यकता है इसी तरह हम तमाम विचारों के होते हुए भी जब एक दूसरे से ऐसे आयोजनों के माध्यम से समागम करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का वो संदेश जो एक लौह पुरुष के रूप में इस देश के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो दिया था, आज वो संदेश भी धरातल पर इस कुशीनगर की धरती पर उतरते हम सबको देखने का एक सौभाग्य मिल रहा है। आज ये कुशीनगर लोकसभा की धरती है जो निरंतर अपने आगे बढ़ने के, अपने पर्यटन विकास को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक प्रयास है कि जहां भी बौद्ध सर्किट एरिया की धरती है उसके पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में एक पहचान मिल सके, और इसीलिए कुशीनगर लोकसभा की धरती पर 2021 में हम सभी मिलकर जो प्रयास किए थे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का सौगात हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। उसके बाद से चाहे जिला प्रशासन हो या कुशीनगर के तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि, हम सभी मिलकर निरंतर इस कुशीनगर के बौद्ध सर्किट एरिया के पर्यटन विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्धारित किए गए लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ने का प्रयास किए। आज कुशीनगर लोकसभा की धरती पर चाहे हाटा के दोनों एक्सीडेंटल चौराहे हो, चाहे कप्तानगंज का स्थल हो, चाहे पडरौना का जिला मुख्यालय हो, अगर मैंने इस लोकसभा कुशीनगर की धरती पर तमाम जगह फ्लाईओवर, कम से कम 1 दर्जन फ्लाईओवर लगभग विकास की सौगात देकर जहां दुर्घटना स्थल पर पूर्ण विराम लगाने का प्रयास किया था,
तो सबसे पहले उसकी शुरुआत इसी कुशीनगर की धरती पर, कुशीनगर मोड़ और गोपालगढ़ मोड़ पर फ्लाईओवर की सौगात हम लोगों ने दिया था। आज हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो लगभग 8 वर्ष पहले ये उत्तर प्रदेश पूरे देश में बदनाम राज्य था, आज अगर इस देश के उद्योगपतियों से पूछा जाए कि पूरे देश का कौन सा राज्य आपके विकास के लिए, आपके व्यवसाय के लिए उपयुक्त होगा, तो हमें लगता है पूरे देश के उद्योगपतियों को अगर स्वर्ग सा धरती दिखाई देता है तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो 8 वर्षों में सुशासन देकर इस प्रदेश की धरती पर और जो यहां से गुंडा राज और अपराधी मुक्त इस उत्तर प्रदेश को कराया, तो आज पूरे देश के उद्योगपतियों के लिए स्वर्ग सा धरती आज उत्तर प्रदेश नजर आता है। आज ये उत्तर प्रदेश जहां विकास के दृष्टिगत निश्चय ही आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके बारे में हम लोग हमेशा कहते हैं गोरखपुर की धरती, गोरखपुर की भूमि उनका अध्यात्म भूमि हो सकता है, लेकिन अगर कर्म भूमि कोई होगा तो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए ये कुशीनगर की धरती उनका कर्म भूमि रहा है। इसीलिए इस उत्तर प्रदेश का 5वां लगभग 500 करोड़ की लागत का अगर कृषि विश्वविद्यालय जैसा ऐतिहासिक विकास की सौगात देने का बारी आया, तो हमारे कुशीनगर लोकसभा की धरती पर और इसी मंदिर के, भगवान बुद्ध के मंदिर के बगल में आज युद्ध स्तर पर निर्माण हो रहा है। कुछ वर्ष पहले तक ये कुशीनगर का विकास चाहे कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे देश के राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के, भले न कहीं नजर आ रहा हो, लेकिन इधर कुछ वर्षों में मैं कह सकता हूं हम सभी के प्रयासों से और माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से आज कुशीनगर का विकास निरंतर ही उत्तर प्रदेश के विकासशील जिलों की अगड़ी पंथ पर खड़ा है। ऐसे ही मैं नहीं कहता, गोरखपुर का ग्रामीण अंचल से लेकर अगर लखनऊ राजधानी के आगे कहीं भी इटावा कन्नौज के ग्रामीण अंचल पर चले जाए तो कुशीनगर ग्रामीण अंचल कहा जाता है, जो आवागमन की बेहतर सुविधा, कहते हैं विकास की किरणें वही जन्म लेते हैं जहां आवागमन की बेहतर सुविधा होता है। और आज कुशीनगर के लोकसभा की धरती पर आवागमन की बेहतर सुविधा उत्तर प्रदेश के किसी भी विकासशील जिले के अगड़ी पंक्ति पर नजर आता है। आज मेडिकल कॉलेज के रूप में इस जिले के असहाय परिवारों की सुविधा के लिए आज प्रारंभ हो चुका है। जिस धरती पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ान भरने के लिए तैयार हो, जिस धरती पर कृषि विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक विकास की सौगात जिले के युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर दिलाने का राह दिखा रहा हो, जिस कुशीनगर लोकसभा की धरती पर 8 फ्लाईओवरों से ज्यादा आधुनिक विकास का संदेश देता हुआ कुशीनगर के बढ़ते हुए विकास का संदेश दे रहा हो, आज मैं कह सकता हूं आपके इस कॉन्क्लेव आयोजन से निश्चय ही कुशीनगर का ये बौद्ध सर्किट एरिया, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बौद्ध सर्किट एरिया को अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर पहचान दिलाने का, एक टूरिज्म बढ़ाने का जो उन्होंने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को धरातल पर उतारने में आपका आयोजन अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। आज के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य गण, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को शुभकामनाएं देते हुए, विशेषकर कुशीनगर जिला प्रशासन को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बातों को देता विराम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना हमें अवगत कराया कि क्या क्या हमारी सरकार अथक प्रयास कर रही है। मैं चाहूंगी अब रिक्वेस्ट करूंगी हमारी सीडीओ मैडम वंदिता श्रीवास्तव जी से कि वो स्टेज पे आए और श्री विजय कुमार दुबे जी का बुके और स्मृति चिन्ह दे के स्वागत करें। साथ ही मैं चाहूंगी कि वो स्वागत करें शोहित मोहन दास जी का, जो कि ओनर है ताज गोरखपुर के। जोरदार तालियां बजाइए आप सभी लोग।
और मैं चाहूंगी कि मैम सम्मानित करें मिस्टर प्रतीक हीरा जी को, जो चेयरमैन है फिकी के। आप तालियों से अभिनंदन और स्वागत करते रहिए हमारे सम्मुख आए हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, सभी मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शोभित मोहनदास जी, ओनर ताज गोरखपुर, को स्मृति चिन्ह भेंट करती हुई सीडीओ कुशीनगर श्रीमती वंदिता श्रीवास्तव जी। और अब शॉर्टली हम बढ़ेंगे अपने पोस्ट लंच के फर्स्ट सेशन पे, जो कि आज का तीसरा सेशन होगा। इट विल बी अ डिटेल्ड डिस्कशन विद टूर ऑपरेटर्स, होटेलियर्स, ऑफिसर्स एंड बिजनेस पर्सन्स। जैसा कि मैं कह रही थी कि अभी हम लोग शॉर्टली वील बी जॉइंड बाय श्री मुकेश मिश्राम जी, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड सेशन ऑफ द डे, एंड आफ्टर लंच ये पहला सेशन होगा, the topic of which will be a detailed discussion with tour operators, hoteliers, officers, industrialists and businessmen on the efforts needed to promote the historical and cultural significance of Buddhist heritage sites in Uttar Pradesh from a tourism perspective and to increase the arrival of foreign inbound tourists. So we have quite a lineup for this session, but before that, हमारे जो माननीय मंत्री हैं टूरिज्म ऑफ कल्चर के, उन्होंने एक छोटा सा मैसेज भेजा है क्योंकि वो आ नहीं सके और बहुत सारे लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है। तो एक बार फिर से श्री जयवीर सिंह जी का वो मैसेज आप तक के पहुंचाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि वो मैसेज प्ले किया जाए। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2026 का 3 दिवसीय आयोजन धम्म, संवाद एवं विकास की थीम पर आधारित करने का काम उत्तर प्रदेश पर्यटन की छत्र छाया में वहां के जिलाधिकारी जी और उनके प्रशासन के माध्यम से आयोजित हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, पूरी दुनिया को हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी एक संदेश देने का काम करते हैं कि जहां एक और दुनिया में युद्ध दिया है, वहीं भारत ने बुद्ध दिया है, ये संदेश देने का काम किया है। भारत की पावन भूमि से जाने वाला संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और बौद्धिज्म, फिलॉसफी और टीचिंग दोनों के आधार पर आज दुनिया में शांति, अमन, चैन कायम हो सकता है। प्रेम, करुणा का वातावरण स्थापित हो सकता है यदि बुद्ध के विचारों को हम लोग धरातल पर उतारने का काम करना है। हमें खुशी है कि लगभग 2000 बौद्ध भिक्षु और 300 अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के साथ एक बड़ा आयोजन पावन बौद्धिस्ट डेस्टिनेशन कुशीनगर की धरती पर सफलतापूर्वक आयोजित करके हमारे जिला प्रशासन के द्वारा बेहतरीन व्यवस्था के साथ ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। हालांकि मुझे इस कार्यक्रम में स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का बहुत मन था, लेकिन किन्हीं विशेष कारणों से मैं हाजिर नहीं हो पा रहा हूं। मेरी ओर से पर्यटन विभाग के सभी अधिकारियों को, डीएम सहित सभी उनके प्रशासनिक टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं
इस सफल कार्यक्रम के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफल होगा, बुद्ध के विचारों को दुनिया में फैलाव मिलेगा, और भारत में उत्तर प्रदेश की पावन धरती, जहां सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बुद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में है, यहाँ विश्व भर के लोग, विदेशी मेहमान, खासतौर से जिनकी आस्था निष्ठा बौद्धिज्म में है, वो आकर के जरूर यहाँ के तमाम स्थलों का भेंट करेंगे, अवलोकन करेंगे, और बौद्ध के विचारों को जानने के लिए, उनके अवशेषों को देखने के लिए ये जरूर पधारेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ऐसे सभी बौद्ध भगवान से जुड़े हुए स्थलों को विकसित करने का, बेहतरीन कनेक्टिविटी देने का, बेहतरीन पर्यटन सुविधाएं विकसित करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कर रहा है। कनेक्टिविटी को भी, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, पूरी तरह व्यवस्थित और आधुनिक करने का काम हमारी सरकार, भारत सरकार और प्रदेश की सरकार ने मिलकर किया है। मैं समझता हूँ कि आज ये सब आकर्षण का केंद्र है, और इस आकर्षित करने का काम करेंगे। देश और दुनिया के जो भी बुद्ध अनुयायी है, वो आकर के इन स्थलों का जरूर भेंट करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है, अनुरोध है। और मैं समझता हूँ कि 3 दिन का ये कॉन्क्लेव उम्मीद के अनुसार सफल होगा, इसका उद्देश्य सफल होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं व्यक्तिगत रूप से कुशीनगर के जिलाधिकारी जी को, जिनने ये अपने स्वयं के पर्यवेक्षण और देखरेख में बेहतरीन आयोजन कराने का काम किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। This was Sri Jaiveer Singh Ji, Minister of Tourism and Culture, Uttar Pradesh. And like I said earlier, he could not made it in person today. And so this was a short message from him, telling you that he is always there and the government of Uttar Pradesh is always there, felicitating all of you in terms of tourism, opportunities, growth when it comes to Kushinagar, Uttar Pradesh and rest of India. Now we have a short movie on Kushinagar and its relevance as one of the major sites of Buddhism. And please have a look at that movie. भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिक चेतना में बसती है। जब शांति, करुणा और सह अस्तित्व के विचार आपस में मिलते हैं, तो मानवता के साथ संपूर्ण विश्व प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है। भगवान बुद्ध ने इसी करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश देकर मानव जीवन को नई दृष्टि प्रदान की। कुशीनगर वही पावन भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और अपने विचारों से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में अग्रसर है। कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में धम्म डायलॉग और डेवलपमेंट की थीम पर हो रहे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का संदेश पूरे विश्व में मानवता को नई राह दिखाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स और बौद्ध धर्म गुरु इसकी गरिमा बढ़ा रहे हैं। भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है और कालातीत है। ये समय में बंधा हुआ नहीं है। प्रदेश सरकार बौद्ध सर्किट के माध्यम से कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी और कुशीनगर जैसे पवित्र स्थलों को एक सूत्र में पिरोते हुए आध्यात्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई दे रही है। ये सभी स्थल भगवान बुद्ध के जीवन, ज्ञान और निर्वाण की अमूल्य स्मृतियों को संजोए हुए हैं, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और अनुभूति प्रदान करते हैं। कुशीनगर को दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ही
सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज वह मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कुशीनगर पर्यटन और निवेश का उभरता हुआ केंद्र है। यहाँ सुदृढ़ होती आधारभूत संरचनाएं इसे नई पहचान दे रही हैं। कुशीनगर में बन रहे भव्य बुद्ध थीम पार्क और बीते 9 वर्षों में प्रदेश भर में हुए 50 लाख करोड़ से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की सशक्त कहानी को दर्शाता है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी की जापान और सिंगापुर यात्रा का संदेश भी यही था। प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों का ही परिणाम है कि कुशीनगर आज केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि वैश्विक संवाद, पर्यटन और निवेश का सशक्त केंद्र बन चुका है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। शांति, साधना और संस्कृति ही आधार। ये है डबल इंजन सरकार। So this was a short movie on the relevance of Kushinagar. Over the last 8 years or so, Purvanchal region, particularly Gorakhpur and Kushinagar, has transformed into a primary hub of the state. This conversation that we will now have in the third session will highlight the significance of the infrastructure developments in these cities and the immense opportunities they present for the investment and tourism. पिछले गत वर्षों में पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र, स्पेशली गोरखपुर और कुशीनगर, मुख्य रूप से रूपांतरित हो चुके हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दी गई हैं और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। और अब अपना जो अगला सत्र होगा, सेशन 3, जो कि हाईलाइट करेगा कि कैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आने से आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं और कैसे इस केंद्रों द्वारा पूरे यूपी ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का विकास किया जा रहा है। तो हम वेट कर रहे हैं हमारे अतिथि जी के आने का एंड फिर हम इस सेशन को आगे लेके जाएंगे। इन द मीनवाइल मुझे याद आ रही है एक बुद्धा जी की छोटी सी स्टोरी जो मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। और ये हम बचपन में अपनी किताबों में पढ़ते थे कि ये स्टोरी बुद्धा जी की। तो एक दिन बुद्धा जी बैठे हुए थे, अपना मेडिटेशन में थे और एक व्यक्ति आता है और बुद्धा जी को बहुत ही बुरा भला कहने लगता है, बहुत गुस्से में होता है और लगातार बोलता चला जाता है। बुद्धा जी अपने ध्यान में शांति से आराम से बैठे हुए हैं और कोई भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। 2-3 मिनट बुरा भला कहने के बाद, गुस्सा शांत हो जाने के बाद, वो व्यक्ति बुद्धा जी से पूछता है कि मैंने आपको इतना सब कहा और आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बुद्धा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसको ना लो तो क्या होगा। तो व्यक्ति जवाब देता है कि अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं उसको ग्रहण ना करूं, आप उसको ग्रहण ना करें, तो वो उपहार मैं रख लूंगा, मेरे पास रह जाएगा। तो इसी तरह यही जवाब बुद्धा जी फिर कहते हैं कि इसी तरह जब तुमने मुझ पे गुस्सा किया, नकारात्मक चीजें कहीं, बुरा भला कहा, तो मैंने इसे ग्रहण नहीं किया। और जब मैंने इसे ग्रहण नहीं किया तो ये नकारात्मकता, ये गुस्सा, ये अशांति जो तुम मुझे देने की कोशिश कर रहे थे वो तुम्हारे पास ही रह जाएगा। So those who do not understand this story in Hindi, I'll translate this for you in English. So once Gautam Buddha was meditating in his state, a man came and started accusing him. He started abusing him. He started hurling a lot of bad words to him. Buddha ji did not move. He kept sitting and he kept meditating. After 2 or 3 minutes, when that man got really, his anger got down, then he asked Buddha ji, why did you not react to my bad behavior? Why did you not react when I was saying wrong things to you, when I was cussing you, when I was saying negative things to you? To which Buddha ji smiled and he said, tell me one thing, dear. What happens when somebody gives you a present and you don't take it? If somebody gives you a gift and you don't take it, then what happens? The man replied, then the gift remains with the person who brought it. Then Buddha ji said, this is exactly what happens. That when they say negative things to you,
when somebody is giving you negativity and you won't accept it, then the negativity remains with the person who brought it. And this is the essence of Buddha's teaching. We all will have circumstances in our life when there will be troubles, when there will be issues, when there will be a lot of negativity in our lives. But how we react to it, how we take it, and how we imbibe that defines who we are and how we contribute to the world. बहुत सारे संघर्ष, दिक्कतें, परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, पर उस परेशानियों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आप उसको कैसे देखते हैं, आप उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये डिफाइन करता है कि आप कितने शांति से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है बुद्धा इन आवर डेली लाइव्स, जो नाचुरन दाशनन जी ने लिखी है, और ये कई भाषाओं में अवेलेबल है. मैं चाहती हूं कि आप सभी वो पढ़ें. अब हमारे बीच पधार चुके हैं हमारे गेस्ट श्री मुकेश मिश्राम जी, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए. और साथ ही में हमारे साथ आए हैं स्टेज पे श्री महेंद्र सिंह तंवर जी, डीएम कुशीनगर. मैं चाहती हूँ आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ दोनों का स्वागत करें. और ये पूरा प्रोग्राम इन्हीं लोगों के नेतृत्व में आज पॉसिबल हो पा रहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए, हम सभी को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और इस प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए. मैं चाहूंगी कि पहले महेंद्र सिंह तंवर जी, डीएम कुशीनगर, स्वागत करें हमारे गेस्ट श्री मुकेश मिश्राम जी का, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं. उनको एक बुके और स्मृति चिन्ह देकर जोरदार तालियां बजाइए. सर का बहुत योगदान रहा है आज इस प्रोग्राम को शेप अप करने में. Thank you so much, sir, for taking our time and coming here today. Ladies and gentlemen, this is Shri Mukesh Mishram ji, IAS, Additional Chief Secretary, Animal Husbandry, Government of Uttar Pradesh. Being felicitated by DM of Kushinagar, Shri Mahendra Singh Tawar ji. All right, ladies and gentlemen, now we'll start the third session of day 2 of International Buddha Conclave 2026. Like I said earlier, this will be a detailed discussion with tour operators, hoteliers, officers, businessmen, industrialists on the efforts needed to promote the historical and cultural significance of Buddhist heritage sites in Uttar Pradesh from a tourism perspective and increase the arrival of foreign inbound tourists. There will be a fire chat on the topic over the last year or so. The Purvanchal region, particularly Gorakhpur and Kushinagar, has transformed into a primary hub of the state. This conversation will highlight the significant infrastructure development in these cities and the immense opportunities they present for investment and tourism. To do this, the session will be chaired by Shri Mukesh Mishram ji. The participants will be Shri Mahendra Singh Tawar, DM Kushinagar. Second participant will be Shri Pratik Hira ji, Chairman FICCI. And the third participant of this fire chat will be Dr. Kaulesh Kumar, Secretary General ABTO. Now I would like to have Pratik Hira ji up on the stage for this fire chat. Can we have Dr. Kaulesh on the stage, please? He's a part of this first session, if he's there somewhere around. No, I think when he comes, he'll join.
So, first of all, welcome to the Member of Parliament from Kushinagar. आपका बहुत बहुत स्वागत है. And our very own Mr. Mukesh Meshram, ये सूत्रधार हैं जो टूरिज्म की आप अब जिस दिशा पे चल रहा है उसके ये सूत्रधार हैं, और जो गति से टूरिज्म आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो इनकी दी हुई गति है जिसको अब कैरी फॉरवर्ड करा जा रहा है. एंड वेलकम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर तनवर. ये पहला ऐसा मौका है, जैसे कि हमारे सांसद जी ने भी बताया, कि जहां पर स्टेट के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कोई प्रोग्राम हो रहा है. यूजुअली ये टूरिज्म डिपार्टमेंट, दूसरे स्टेट्स में भी टूरिज्म डिपार्टमेंट ज्यादातर इनिशिएट करता है, पर कुशीनगर एक ऐसा जगह है जहां पर पहली बार डिस्ट्रिक्ट ने टूरिज्म के को एक केंद्र बिंदु बनाते हुए इस तरह का प्रोग्राम इनिशिएट करा है. तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कुशीनगर एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिजर्व अ स्पेशल थैंक्स फॉर दिस एंड कॉम्प्लीमेंट्स. तो एक बहुत जोरदार तालियां इन दोनों के लिए. उसके बाद हमारे जो एसीएस साहब हैं, उन्होंने टूरिज्म को एक नई दिशा दिखाई, एक नई गति, जैसे हमने बताया, दी. और टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है जिससे जब कोई ऑफिसर चला भी जाता है तब भी उसकी आत्मा जो है वो टूरिज्म में ही रहती है, और ऐसा अक्सर देखा गया है. इवन हाँ बिल्कुल, रिटायरमेंट के बाद भी आप देखिए जो भी टूरिज्म के ऑफिसर्स गए वो किसी न किसी रूप में टूरिज्म से आज भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो. तो शायद टूरिज्म में कुछ ऐसा चुंबकीय कोई चीज होगी जो लोगों को जोड़े रखती है. अब हम आते हैं इस क्षेत्र पे. देखिए, हम सब पूर्वांचल क्षेत्र में बैठे हैं. ये पूर्वांचल क्षेत्र करीब अगर आप आज से 9 साल पहले, 8 साल पहले चले जाएं तो ये एक फॉल ऑन जगह थी जहां पर लोग आना नहीं चाहते थे, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे. और हम जिस स्कूल से हमने तालीम ली वहां पर काफी सारे हमारे साथ के बच्चे जो हैं वो पूर्वांचल से आते थे. तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था ये देखकर कि भाई पूर्वांचल से इतनी दूर तक उनके पेरेंट्स इनको हॉस्टल में छोड़ जाते हैं. ऐसा क्यों? पर क्योंकि यहाँ पर बेसिक एजुकेशन की भी अपॉर्चुनिटीज नहीं हुआ करती थी. पर वो सारी चीजें जो हैं आज इस नई सरकार में योगी जी ने पूरी बदल के रख दी. और आज आप अगर गोरखपुर जहां पर हम लोग रह रहे हैं, देखिए 2 5 स्टार होटल्स आपके ऑलरेडी ऑपरेशनल है और एक और आ रहा है. उसके बाद यहां पर आप देखिए कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है. और जब हम लोग इस रोड से आ रहे थे, क्या ब्यूटीफुल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है. और बल्कि हम तो कह रहे हैं कि अंडररेटेड सिटी के रूप में आप कुशीनगर को देख रहे हैं, जिसमें एक इमेंस अपॉर्चुनिटीज है. तो अब ये गति शुरुआत यहां से करते हैं. एक शॉर्ट हम जानना चाहेंगे सांसद जी से कि पॉलिटिकल विल कहां से शुरू हुई. इस चीज की जो पहल थी वो ऑफ कोर्स जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होती है कोई काम नहीं हो पाता है. हम एज एन इंडस्ट्री पर्सन आपको ये बताना चाहेंगे, पर डेफिनेटली पॉलिटिकल विल यहां पर थी. तो वो कहां से आई विल, और आपको किसने प्रेरणा दी? आप लोग को शायद आभास भी नहीं है, हमारे जिले के पूर्वज लोग जानते हैं. कभी पडरौना के बाऊ पूरे प्रदेश में फेमस होते थे. ये जितने युवा हैं अपने पूर्वज से पूछ ले, बलकुड़िया का घेघा और पडरौना के बाऊ. भगवान बुद्ध, मैंने इसीलिए तो कहा दुर्भाग्य है, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थल होते हुए भी जो कुशीनगर का सम्मान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था, कहीं भी इसकी ख्याति नहीं गया कुशीनगर में. उसका कारण हो सकता है विकास से दूर. भूमि उपजाऊ था, सिंचाई की व्यवस्था थी, लेकिन किसान हाशिए पर था. इन सब के बाद मैं अक्सर कहता हूं, कोरोना ने दुनिया के विकास का मार्ग अवरुद्ध कर दिया. और वारे कुशीनगर कोरोना के बाद विकास का द्वार कोरोना यहां से जाते जाते खोल गया. कोरोना के बाद अब देखिए 2019 में हम लोग प्रयास किए,
ये 22-24 साल से अंतर्राष्ट्रीय यह हवाई अड्डा जिसकी अस्तित्व लोग मान चुके थे कि समाप्त हो गया, उसकी प्रयास 2019 में हम लोग किए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दर्जनों बार मिले, और देखिए कोरोना बीते बीते 2021 में इसका भव्य उद्घाटन हुआ। 8 महीना उड़ान भी अच्छे से हुआ, लेकिन आईएलएस हुआ पद और राजनीति का महत्व हो सकता है कोई जनप्रतिनिधि न समझे, लेकिन जब कोई कार्यकर्ता संघर्षों के बुनियाद के दम पर कोई पद पाता है तो उस पद की गरिमा को बनाए रखने का अपने को धर्म मानता है। तो हम लोगों ने प्रयास किया, और हमारे जैसे तो लाख प्रयास करने वाले कर जाएं। जब देश का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ हो और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हाथ हो, तो हमारे जैसे युवा जनप्रतिनिधि जब प्रयास करेंगे तो उनका प्रयास हमेशा धरातल पर दिखाई देगा। और वही कारण है कि जिस कुशीनगर की धरती पर भगवान बुद्ध के इस मंदिर के अलावा कुछ नहीं था, आज उत्तर प्रदेश के विकासशील जिलों की आप बात करेंगे तो हम लोग खड़ा होकर वहां पर जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और यही पॉलिटिकल विल होती है बेसिकली, कि आपने जैसे कहा कि ये जन की विल होती है, और वो जो जन की विल है वो ट्रांसलेट करता है एक पॉलिटिशियन जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो, सांसद हो, जो भी हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पर पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत एक इंपॉर्टेंस होता है। सो नाउ लेट मी कम टू यू मिस्टर मेश्राम। एक हम समझते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू वर द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म इन द स्टेट ऑफ यूपी एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर जनरल। तो अब हम थोड़ा सा उस इतिहास में जाते हैं। उस इतिहास को अगर हम झांकते हैं, टूरिज्म के इतिहास को देखते हैं, तो उसमें बुद्धिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका एक और आज हम देख रहे हैं उसको। हो सकता है तब हमने बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट टूरिस्ट को इतना सीरियसली न लिया हो, पर आज जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और एक हमारा स्पेशल सेशन भी है इस पे, लुक टुवर्ड्स एशियान, तो उसका मकसद यही है कि हमने एक देखो अपना देश का उन्होंने नारा दिया, और अब वो जल्दी दे देंगे कि अपना देखो अपना पड़ोस, क्योंकि पड़ोस में ही हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। बुद्धिज्म जितना एशियन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में जितना स्प्रेड हुआ, उतना शायद कहीं नहीं, अपने भारत में भी उतना स्प्रेड नहीं हो पाया। तो वहां से एक इनबाउंड की अपॉर्चुनिटी बहुत मेजर मिलती है। आपके कार्यकाल में और गवर्नमेंट के एजेंडा के तहत बुद्धिज्म को लेकर, बुद्धिस्ट टूरिज्म को लेकर क्या सीरियसनेस है और किस तरह के काम हुए और हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बुद्धिस्ट टूरिज्म प्रमोशन के या इंफ्रास्ट्रक्चर के, किस तरह के काम हुए? सबसे पहले मैं सांसद जी और हमारे युवा जिलाधिकारी को बधाई देता हूं इतना अच्छा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करने के लिए। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर इस स्थल पर इतने सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया है। मुख्य रूप से इस समय पूरे विश्व में बुद्धिज्म एक नई फिलॉसफी और नई लाइफ स्टाइल के रूप में एस्टेब्लिश हो रहा है। कई जगह पर इसको बहुत अच्छी तरीके से यंग जनरेशन ने अडॉप्ट करना चालू किया है,
और बहुत सारे लोगों ने इसको अपने जीवन में, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग के तौर पर जीना चालू किया है, बिना किसी रिलीजियस इसकी जो धार्मिकता है उसको दिमाग में रखे हुए, या बिना किसी रीजनलिज्म या किसी भी तरह के जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है उसको ध्यान में रखे हुए कि भाई ये एक पर्टिकुलर सेक्ट, ये एक पर्टिकुलर इज्म, ये एक पर्टिकुलर रिलीजन है। इस सबसे परे अगर जाएं तो हम ये देखते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले आप सोशल मीडिया में जाइए तो आपको पता चलेगा, वॉक फॉर पीस, ये टेक्सास से लेकर के वाशिंगटन तक एक वॉक चली और उसमें 21 बुद्धिस्ट मॉन्क्स बिना किसी को बताए, बिना कोई प्रोपेगेंडा किए, बिना कुछ प्रचार किए, चुपचाप वो सड़क के किनारे पैदल पैदल चलते रहे। जब उन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और जब वो करीब आता गया वाशिंगटन, लोगों में पूरा एक, किसी भी धर्म से उनको कोई मतलब नहीं, बहुत सारे उसमें क्रिश्चियन, बहुत सारे अपने हिंदू, बहुत सारे उसमें और अन्य रिलीजन के लोग सड़कों के किनारे लाइन लगाकर खड़े रहे, केवल उनके दर्शन के लिए, उनसे हाथ मिलाने या उनको प्रणाम करने, उनको पुष्प गुच्छ देने के लिए या फूल देने के लिए। और ये पूरा मकसद उनका यही था। जो उसके लीडर पन्नकारा लगातार एक ही संदेश देते थे कि आप सुबह उठें और केवल ऑटो सजेशन करिए कि टुडे इज माय पीसफुल डे, आज का दिन मेरा एक शांतिपूर्ण दिवस होगा। इसी तरीके से हम अगर ऑटो सजेशन करें सुबह उठ करके कि आज मैं स्वस्थ हूं, खुश हूं, या टुडे इज माय हैप्पीएस्ट डे, या इस तरीके से कि आई एम हेल्दी, ये जो ऑटो सजेशन है वह आपको चैतन्यता देता है और आपके अंदर के जितने सेल्स हैं ये सारे सेल्स अपने आप एक्टिवेट होते जाते हैं। तो पहले तो पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं, फिर आपको हेल्थ की तरफ लेकर के जाते हैं। और आप अगर शांत हैं, फैमिली शांत है, सोसाइटी शांत है, आसपास के लोग शांत हैं, पीसफुल है, तो वर्ल्ड पीस स्थापित हो सकती है। और इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही संदेश लेकर के विभिन्न देशों में उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और ये कहा कि रिवाइवल ऑफ बुद्धिस्ट टूरिज्म, हमारे देश में बुद्धिस्ट टूरिज्म का रिवाइवल होना चाहिए। रिवाइवल इसलिए होना चाहिए कि 60 करोड़ जो बुद्धिस्ट पूरे विश्व में करीब 39 देशों में अलग अलग संख्याओं में विराजमान है, विद्यमान है, क्या हम उनको अपने बुद्धिस्ट डेस्टिनेशंस की ओर लेकर नहीं आ सकते? क्योंकि बहुत सारे धर्मों के जो भी स्थल हैं, उनके जो प्रवर्तक होते हैं, जो प्रारंभ करने वाले होते हैं, उन स्थलों पे ढेर सारे लोग जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए, तीर्थ करने के लिए, और वहां से ऊर्जा ग्रहण करके वो वापस लौटते हैं। हमारी ये लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ जहां लिविंग ट्रेडिशंस रही, ये ऐसा हेरिटेज है जिसके प्रति हमको न केवल श्रद्धा का भाव बल्कि इस स्थल से बहुत सारे और संदेश हम पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। अब इन संदेशों को अलग अलग माध्यमों से प्रसारित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो हमने उत्तर प्रदेश पर्यटन में प्रयास किया। बुद्धिस्ट सर्किट 6 महत्वपूर्ण स्थल हैं। हमारे यहाँ पर है कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में, और बहुत इस क्षेत्र में तो बहुत आसपास है, श्रावस्ती है,
कुशीनगर है, संकिस्सा, कौशाम्बी और सारनाथ, ये 6 महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा रामग्राम और देवदह महाराजगंज जिले में ये 2 और स्थल हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। इन सभी स्थलों को लेकर के अगर अच्छा सर्किट डेवलप किया जाए तो बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट है या पिलग्रिम्स हैं, जो तीर्थयात्री है, उनको हम एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। 2-3 समस्याएं आती है जब थाईलैंड से लोग क्यों नहीं ज्यादा आते या उनके मन में क्या भाव है। वहां पर मेरे एक बैचमेट श्री नागेश सिंह जी एम्बेसडर पदस्थ हैं, अब वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो उनसे बातचीत हुई कि भाई कैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जाए। उन्होंने कहा श्रद्धा में कमी नहीं है इन स्थलों के प्रति। 95% से ज्यादा लोग थाईलैंड में बुद्धिस्ट हैं, वो आना चाहते हैं। उनके लिए तो ये एक स्वप्न है, उनके लिए तो ये कल्पना एक बहुत बड़ा लाभ की वस्तु है। लेकिन अभी उनके मन में यही ध्यान है कि आज भी, अब उनके पुराने पुरखे लोग जो आए होंगे वो जाके बता गए होंगे कि आज भी उस देश में लोग लोटा लेके सड़कों के किनारे ही टहलते हैं और जन सुविधाएं या जो वे साइड एम्यूनिटीज होती है, ढाबों की और अच्छे सर्विसेज की कमी है। तो कहे कि वो उनको लगता है कि भाई सपरिवार जाएंगे तो इस संकट का, इस कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो हमने फिर टूरिज्म में 100 करोड़ से अधिक की धनराशि वे साइड एम्यूनिटीज के लिए ही प्राविधानित कर दी है। वो अब धीरे धीरे बनने चालू होंगे और बहुत सारी जगह पर आएंगे। पहले उनको ये अनुभव तो हो कि ये होना चाहिए। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया से एक जोगे ऑर्डर के लगभग 250 भिक्षु जब भारत और साउथ कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 50 साल पूरे हुए तो वो आए। लगभग 49 दिन की यात्रा, पद यात्रा की उन्होंने, पैदल पैदल घूमे सभी जगह। और जब वापस लौटने लगे तो लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनका हमने संवाद स्थापित कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ बैठे और आखिरी में उन्होंने पूछा जोगे ऑर्डर के हेड से जो आए हुए थे कि आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई। उनका वही जवाब एक ही था, कैसा बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत पवित्रता, बहुत शुद्धता, प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी, इस सब से हम भर गए, बहुत अच्छा रहा। बस वो टॉयलेट्स हमको नहीं मिले रहा जगह जगह। और जो हमारे साथ में लोग चलते थे गाइड्स, वो कहते थे कि इधर वो झाड़ी दिख रही, उधर अब पैदल चलना है तो 5-5 किलोमीटर के बाद तो मिलेंगे नहीं ना। तो कहे कि साहब उधर चले जाइए। अब कैसा, आप 1-2 जगह कोशिश किए तो चारों तरफ लोग ही लोग, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है ना हमारी आबादी। जिधर खड़े हो जाए उधर 4 लोग झांकने के लिए खड़े हो जाते थे कि ये गेरुआ वस्त्रधारी इधर कहाँ हमारे खेत की तरफ चला आ रहा है, तो कहाँ बेचारे खड़े हो पाते हो। तो फाइनली ये भी बड़ी दुविधा रही उनके लिए। तो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने उसी समय कहा कि इसके ऊपर पर्यटन विभाग को काम करने की आवश्यकता है और ये करना चाहिए। तो ये एक सवाल है जिसको हमको सॉल्व करना चाहिए। दूसरा है, जब भी कोई विदेश से आता है हमारे देश का, चाहे वो गाइड हो, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, दुकान वाला हो, ढाबा वाला हो, उसको वो समझता है कि ये बड़ा मालदार आदमी है, भले ही वो बेचारा अपने वहां पे झाड़ू लगाता हो, अब वो हमारे ही तरह का आदमी हो। लेकिन कोई भी विदेशी जो भी बाहर से आया है और अगर गोरी चमड़ी का है तो हमारे यहाँ के हर आदमी को लगता है हाँ ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जितने जल्दी इससे जितना जीम लो, जितना खींच लो। ये दिमाग में दूसरा भाव, इसको खत्म करना है। हमको टूरिस्ट फ्रेंडली बनना पड़ेगा। ये टूरिस्ट फ्रेंडली बहुत सारे देशों के लोगों ने सिखा दिया है अपने हर आदमी को। मैं जॉर्जिया में था, वहां पे जब टैक्सी में बैठ करके जाने लगा तो ड्राइवर
गाड़ी चला रहा था और साथ में पूछ रहा था कि सर आपने ये चर्च देखा? मैंने कहा कि नहीं, यहाँ जरूर जाइए, यहाँ पर ये वो ही उसको हिस्ट्री पता थी। थोड़ा आगे चला, उसने कहा कि ये जो हमारी रिवर है, इस रिवर में फलानी जगह वो स्टेच्यू देख रहे हैं, ये उस जमाने का है, इसको आपने देखा? अब मैं कहूं यार ये टैक्सी ड्राइवर है कि गाइड है, या जैसे नहीं पकड़ करके ले जाते कि अरे साहब आपने अगर ये नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यहाँ पे जॉर्जिया में। तो इस तरीके से हर वो व्यक्ति जो टूरिज्म से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, चाहे वो ढाबे वाला हो, बाहर से टूरिस्ट आएगा उसके यहाँ खाना खाएगा, रेस्टोरेंट वाला हो, टैक्सी वाला हो, रिक्शा वाला हो, इन सब को हम उस जगह की हिस्ट्री और उस जगह का एक जनरल परसेप्शन ऐसा क्रिएट करा दें कि बाहर वाले को लगे कि ये सब कुछ जानता है और वो उससे आग्रह करे कि यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ जाइए। तो इस तरीके से ये खुद अपने आप में गाइड बन जाएगा। और गाइड बन के उसने ये भी कहा कि साहब हमारे यहाँ पे एक खाजा होता है, हम तो खाजा कहेंगे इधर, उनके यहाँ बहुत बड़ी पूड़ी होती है, मीठी पूड़ी, ठीक है, कहे वो खाया कि नहीं आपने? ये जॉर्जिया की बात बता रहा हूं। मैंने कहा नहीं, कहे वो जरूर खाना। तो वो खाने के बारे में जानता है। उसने बताया कि साहब आपने चाचा पी? मैंने कहा चाचा क्या होती है? कहे साहब ये हमारे यहाँ की इतनी बढ़िया वाइन होती है कि जितने सरदर्द, गले का दर्द, जुकाम, सर्दी होगी सब गायब हो जाएगा। मैंने कहा भाई वो भी मैंने नहीं किया, खैर मैं तो पीता भी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब फिर आप जॉर्जिया में कुछ नहीं घूमे, कुछ नहीं देखे। मतलब वो आपको गाइड बन के आपको एक तरीके से तैयार कर रहा है। तो ये होता है कि मेरा टैक्सी का धंधा तो चल रहा है, लेकिन उस रेस्टोरेंट वाले का भी धंधा चले जो कुछ बेच रहा है, उसका भी धंधा चले जहां से कोई सामान आप सोवेनियर के तौर पे ले जा सकते हैं। तो वो सबके बारे में चिंता करते हुए, तो ये एक बड़ी इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसके पब्लिसिटी की। इस पे काम करने की जरूरत है। तीसरी बात, मार्केटिंग ब्रांडिंग हमको इन स्थलों की करने की जरूरत है। अभी हमारी मार्केटिंग ब्रांडिंग उतनी नहीं है, और यही वजह है कि एक गवर्नर साहब जापान के जब हमसे मिलने आए, चूंकि मैं 5 साल रहा हूं टूरिज्म में, तो बहुत सारे वाकयात इससे जुड़े रहे। यामानाशी प्रीफेक्चर वहां पे स्टेट को कहते हैं, प्रोविंस को कहते हैं। यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर, उनको जब हमने प्रेजेंटेशन दिया, ये बुद्धिस्ट जगह हैं, बड़ी पवित्र हैं, यहां से ये संदेश गया है, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए थे, 25 वर्षावास बिताए थे, श्रावस्ती है ये कपिलवस्तु, जहां 29 वर्ष उन्होंने अपने पूरे जीवन के प्रारंभिक वर्ष पूरे यहाँ पे व्यतीत किए। ये सारनाथ है जहां से उन्होंने पूरा ये बुद्धिज्म का सरमन स्टार्ट किया, फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया। ये कुशीनगर है जहां पे उन्होंने अंतिम अपनी सांसें ली, बिल्कुल एक मानव की भांति, महामानव की भांति। और यहां से जो उनके परम प्रिय शिष्य थे, उन्होंने जब पूछा कि अब कोई अंतिम संदेश हमारे लिए, तो उन्होंने एक ही चीज कही, अपो दीपो भव, स्वयं प्रकाशित बनो। आज के बाद अब डिपेंड होने के लिए कोई नहीं बचेगा। हर व्यक्ति अपने आप में बुद्ध बन सकता है, हर व्यक्ति अपने आप में एनलाइटन्ड हो सकता है, हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है, रियलाइज योर ओन पोटेंशियल, कि आप अपने आप को अच्छा या बुरा साबित करने के लिए खुद काम कर सकते हैं। तो क्या साबित करना है, ये हमको अपने आप जानना पड़ेगा। ये उन्होंने आखिरी संदेश भी यही से दिया। तो ये प्रारंभ है कि पूरे विश्व में हम अपने इस पोटेंशियल के साथ में ये रियलाइज करें कि उत्तर प्रदेश में तो इतने 6 महत्वपूर्ण स्थल है, इन स्थलों की मार्केटिंग ब्रांडिंग किस तरीके से की जाए। और आज का युवा, आज के बहुत सारे लोग इस ओर देख रहे हैं, भारत की ओर देखते हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा के लिए, योग के लिए, यहाँ देखते हैं वो एनर्जी के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए, स्पिरिचुअल ज्ञान के लिए। इस ओर उनका ध्यान जाता है कि इस देश से उनको संदेश मिलेगा, कुछ न कुछ जीवन जीने की कला सीखेंगे वो। तो ये सारा पोटेंशियल है। तो हर व्यक्ति को एक संदेश ये अपने अंदर ग्रहण करना है, फिर बाकी लोगों के बीच में ले जाना है, और वो है
सबसे पहले अपने को जाने। दिक्कत यह है हम अपने को जानना छोड़ करके दुनिया जहां को जानने का ठेका ले लेते हैं। वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। और जहां हम दूसरों को जानने का ठेका लेते हैं तो अपना जो ओरिजिनल ठेका है उसको कहीं पे पैकअप करके रख देते हैं। भाई पहले अपने को तो जाने हम कैसे हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो जानने के लिए जो प्रैक्टिस है वो है विपस्सना प्रैक्टिस। सांसों के जरिए अंदर जा करके अपने को झांकना, देखना कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। और जिसने ये कर लिया तो उसके लिए बाकी को जानना भी आसान हो जाता है। लेकिन डर लगता है, क्योंकि सबसे पहले जब हम अपने को जानना चालू करते हैं तो लगता है यार मैं तो इस समाज में बड़ा दुष्ट टाइप का आदमी हूं, या मैं जो है बड़ा अंदर लालची आदमी हूं, मैं बड़ा क्रोधी आदमी हूं, मैं बड़ा अहंकारी आदमी हूं। वो छोड़ देता, छोड़ो यार मेरे को नहीं जानना है अपने को, मैं दूसरे को बताऊं कि तू बहुत लालची है, तू बहुत क्रोधी है, तू बहुत बेकार है। तो ये आसान वाला काम वो लेने लगता है। पर विपश्यना सेंटर हमने टूरिज्म की ओर से एस्टेब्लिश करने चालू किए हैं। कपिलवस्तु में विपश्यना सेंटर लगभग बन के तैयार है, उसको अच्छे संस्थान को देकर के संचालित कराया जाएगा। अभी कौशाम्बी में विपश्यना सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर चूंकि पहले से एक विपश्यना सेंटर बना हुआ है और एक विपश्यना उपवन है, तो इसलिए यहाँ पे स्वीकृत नहीं हुआ। लेकिन आगे की योजना में वो भी पर्यटन विभाग वाले रखेंगे, बाकी सभी जगह रखेंगे, संकिस्सा में भी हर जगह। तो ये काम आगे बढ़ जाएगा तो लोगों को 10 दिन का जो मेडिटेशन का एक बड़ा अच्छा सिस्टम होता है, ये हेल्थ की तरफ भी लेके जाता है। क्योंकि बुद्ध ने 2-3 चीजें बड़ी अच्छी कही कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, या वैसा आपके साथ होने लगता है। उसी को द सीक्रेट में रोंडा बर्न ने कहा कि जब आप सच्चे मन से कुछ सोचते हैं, मैग्नेट की तरह वो थॉट बनता है और पूरा यूनिवर्स आपको उस थॉट को परिणाम में कन्वर्ट करने के लिए एक साथ हो जाता है। और उसी को किसी फिल्म में एक जबरदस्त है ना प्रसिद्ध एक्टर ने वो डायलॉग मार दिया तो सारी दुनिया के वाह साहब फिल्म का डायलॉग है। ये तो बहुत पहले 2500 साल पहले बुद्ध कहे गए, आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, वैसा होने लगेगा आपके साथ। तो ये चीजों को लेकर के बच्चों में भी इस चीज की विचारधारा स्थापित करने की आवश्यकता है। फोकस बढ़ेगा, जो आनापान सती ध्यान करते हैं, फोकस बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, पॉजिटिव सोच बढ़ती है, और साथ ही साथ जो है लाइफ सिंपल जितनी हो उतनी अच्छी रहती है। इसको जापानीज ने चालू भी किया है, मिनिमलिस्ट। घरों में जाइए, ढेर सारा सामान रखेंगे ना तो आदमी खुद कंफ्यूज रहेगा, यार किधर कौन सा सामान रखा है अपना। कम रहेगा तो उसको पता रहेगा जरूरत का सामान कहां रखा है, उसको उठाया, काम का सामान बस। ये अनक्लटरिंग चालू हो गई है, इसको कहते हैं मिनिमलिस्ट। जितनी जरूरत है उतना सामान रखो, अपरिग्रह। ये पंचशील में बहुत ही अच्छी तरीके से व्याप्त है सिद्धांत। तो त्रिशरण पंचशील इसको लेकर के और फिलॉसफी साथ में चले और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी साथ में चले, तो एम्प्लॉयबिलिटी का बहुत बड़ा सोर्स है टूरिज्म। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 T, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म। बहुत बढ़िया एम्प्लॉयबिलिटी का भी सोर्स है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो यूपी में हम लोग बात करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का भी सोर्स है। और ओवरऑल डेवलपमेंट उस शहर का होगा, ये भी उसका एक अच्छा माध्यम है। थैंक यू हीरा जी। बहुत अच्छे पर्टिनेंट पॉइंट्स एज यूजुअल आपने बोले, और जिसमें से जो टेक अवेज हैं कि बुद्धिज्म जो है वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे सारे रिलीजन्स जो इंडिया में बने, वो वे ऑफ लाइफ है, स्पिरिचुअलिटी है। और उसको एक रिलीजन की अगर हम परिभाषा से हटा के प्रोजेक्ट करें तो शायद हमारा जो रीच है वो और ज्यादा होगा। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक इम्यूनिटीज गवर्नमेंट का रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन होना बहुत बड़ी बात है। अक्सर देखा जाता था कि गवर्नमेंट्स जो है वो रियलाइज नहीं करती थी कि कहां पर हमारी कमी है।
तो ये जो चीफ मिनिस्टर साहब का आपने इंसिडेंट बताया कि जहां पर उन्होंने ये रियलाइज करा कि हमारे पास टॉयलेट्स की वे साइड एम्यूनिटीज की कमी है और उस पर एक भरसक प्रयास हुआ, तो ये एक कॉन्फिडेंस लेवल जगाएगा हमारे जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं और भी लोग हैं, सिर्फ बुद्धिज्म ही नहीं पर ओवरऑल अगर हम टूरिज्म का सिनेरियो देखें। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने आपके उससे लिया कि जहां पर आपने विपासना सेंटर्स की बात करी, उसको हम कमर्शियली एक लॉन्ग स्टे टूरिज्म का एक एवेन्यू देखते हैं, जहां पर हम टूरिस्ट को एक नाइट नहीं, 2 नाइट नहीं, बल्कि 10 नाइट्स पे एक डेस्टिनेशन पे हम रख सकेंगे। तो कमर्शियली एक ये बहुत ही अच्छा वो है। पैशन ऑफ पीपल, यानी कि आपको, जनता को, जो कुशीनगर की जनता है, गोरखपुर की जनता है, इसको एक जागरूक होना पड़ेगा, पैशन के लिए रेडी होना पड़ेगा टूरिस्ट को रिसीव करने के लिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और जैसा पहले भी हमारे सांसद साहब ने कहा, आप चाहेंगे तो ये सब करेंगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने दोबारा से टच करा। और पर्कुलेशन ऑफ पब्लिसिटी, कि पब्लिसिटी इतनी अच्छी चीज और खराब चीज है कि अभी कल ही हमारे पास यूके से एक ग्रुप आ रहा था और उनका हमारे पास मेल आया है जो अभी भी हमारे फोन पर है कि हमें जो मई में आना था, क्या हम अपनी ट्रिप पोस्टपोन कर दें क्योंकि वहां पर फ्यूल क्राइसिस हो गई है, कुकिंग गैस अवेलेबल नहीं है, क्या हमें खाना मिल पाएगा होटल्स में, क्या हमारी गाड़ियां जो बस है वो चल पाएगी इंडिया में। तो अब ये देखिए, यहां पर कोई समस्या नहीं है, पर अब वो किसने वीडियोस वहां पर दिखाए, वो एक दिन के किसने गैस की लाइन दिखाई सोशल मीडिया में, ऑफ कोर्स, तो अब वो कन्विंस करना एक ऑपरेटर के लिए कितना एक चैलेंज हो जाता है बड़ा, वो आप समझ सकते हैं कि जरा सी इंडिया को देखना बड़ा मुश्किल होता है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है, लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, लोग विश्वास करना चाहते नहीं है। तो शायद यहां पर हम लोगों को इस गैप को फिलअप करना पड़ेगा। तो नाउ लेट मी कम टू मिस्टर तनवर हु इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, गुड बैड एंड अगली सारे जो अच्छी बातें, ब्रिक बैड, सारे इनको झेलने पड़ते हैं। टूरिज्म के लिहाज से हमारा जो इंट्रोडक्शन था कुशीनगर से, वो राजलिंगम साहब ने करवाया, और एक बहुत ही पैशनेट ऑफिसर वो यहाँ पर पोस्ट हुए, जहां पे भी गए टूरिज्म के लिए पैशनेट थे, और काश वो आगे चल के हमारे टूरिज्म में भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन के आए। बट द पॉइंट इज कि उनका जो पैशन था वो उस लेवल का पैशन आज भी हमें ये दिख रहा है कि आज का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो भी कैरी फॉरवर्ड करता हुआ आ रहा है टूरिज्म का पैशन। किस तरह का विजन एज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, a district magistrate, of course a manager as well of a district, how do you see your district coming up as a great tourist destination? Thank you very much. सबसे पहले तो मैं, माननीय सांसद जी हैं, एसीएस सर हैं, और हमारे जो सभी मेहमान जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं जनपद कुशीनगर की तरफ से, जिला प्रशासन और पूरे परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत और सबका अभिनंदन करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें आपके सामने छोड़ूं। जैसा कि शुरुआत सांसद जी ने की थी और आपने सवाल किया था पॉलिटिकल विल का, और सांसद जी ने उसको बहुत खूबसूरती से जो है कनेक्ट किया कि लोग जो चाहते हैं वही जनप्रतिनिधि चाहते हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि इस पूरे पिरामिड को अगर समझे हम लोग, तो सबसे ऊपर अगर लोग आते हैं तो उस पूरे पिरामिड में मैं अपने आप को सबसे नीचे पाता हूं। वो किस तरह से कनेक्टेड है, मैंने अभी इसको रियलाइज किया कि जो लोग चाहते हैं वो जनप्रतिनिधि चाहते हैं, मतलब जो जन चाहता है वो जनप्रतिनिधि चाहता है, और जो जनप्रतिनिधि चाहते हैं वो सरकार चाहती है। सरकार जो चाहती है मतलब शासन जो चाहता है फिर वो प्रशासन उसको करने में लग जाता है। तो अगर आप ये पूरी कड़ी देखें कि जन से जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि से सरकार, सरकार मतलब शासन, शासन से प्रशासन, और प्रशासन में भी हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं वहां से हम चीजों को कैसे देखते हैं। एसीएस सर ने भी बहुत चीजें बताई और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत चीजों को विचार करने के लिए हमारे पास फूड फॉर थॉट्स भी दिए। मैं जिलाधिकारी होने के नाते मैं जो देखता हूं पूरे इस व्यवस्था को, ये जो कार्यक्रम आज का हो रहा है, ये पर्यटन विभाग के द्वारा जो फंड है वो दिया गया, तो डेफिनेटली ये सरकार की मंशा थी, तभी ये सारा इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग करके ले जा रहे हैं। दूसरा,
जिले में भी एक जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद होती है। वो पूरा काम उसका होता है पर्यटन को देखने का। केवल जिलाधिकारी तो एक मैं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में काम, मैं जिला अधिकारी के रूप में काम करता हूं, मैं कलेक्टर के रूप में काम करता हूं। तो ये सबके रोल अपने अपने अलग अलग हैं। लेकिन अध्यक्ष जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के रूप में मेरा एक्सक्लूसिव दायित्व बनता है कि मैं जनपद के पर्यटन और संस्कृति के लिए काम करूं। तो ये जो काम हो रहा है ये उस दिशा में हम लोग इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि ये भी मेरा एक दायित्व है। इसको हम लोगों ने जब कंसीव किया था, पहले मैं कॉन्क्लेव के बारे में बताऊंगा, फिर मैं जनपद के बारे में बताऊंगा। तो 2 हिस्सों में अपनी बात को रखूंगा मैं। पहला जो कॉन्क्लेव के बारे में अगर मैं 2 मिनट में पूरी बात रखूं तो वो इस प्रकार से होगी कि जब हम लोगों ने इसका विचार किया तो मुझे याद है कि एसीएस सर से मेरी पहले बात हुई और मैंने सर के सामने अपनी इस इच्छा को जाहिर किया कि सर कुशीनगर में मुझे लगता है कि एक बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हमें होना चाहिए। और ये आज से 6-7 बल्कि 8 महीने हो गए होंगे। तब सर ने कहा था कि नहीं, इसके लिए हम आपको बजट देंगे। और देखिए इसी वित्तीय वर्ष में हमको बजट दिया गया। इसके लिए मैं सर का भी आभारी हूं। दूसरा, जब हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्लान कर रहे थे तो अभी होली के आसपास ही सारे फंड्स हमको प्राप्त हुए। और जो ये सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं 15 से 20 दिन मुश्किल से हम लोगों को मिले ये पूरी व्यवस्थाएं तैयार करने में। मुझे याद है अभी आशीष यहाँ बैठे भी हैं। मैं इनिशियल डिस्कशंस जब चल रहे थे तो मैंने आशीष से पूछा तो इन्होंने कुछ नोट्स बना के 1 दिन 2 दिन में कुछ अपनी तरफ से आइडियाज शेयर किए और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत टैगलाइन दी। वो टैगलाइन का मेंशन करना बहुत जरूरी महसूस होता है क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्क्लेव जो है वो उन 3 शब्दों पे हम लोगों ने कंसीव किया। उन्होंने एक सबटाइटल दिया कि धम्म, संवाद एवं विकास, धम्मा डायलॉग एंड डेवलपमेंट। इस पूरे कॉन्क्लेव में यही 3 वर्ड हम लोगों ने सबसे आगे रखे हैं। और ये कहां से आया? केवल बातचीत के माध्यम से संवाद, और संवाद भी इसका एक हिस्सा है। तो मैं इसके लिए आशीष और उनकी पूरी टीम को भी इस मंच से धन्यवाद देता हूं। उसके बाद फिर ये बात हुई कि इन 3 शब्दों पे हम लोग और क्या जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगा कि एक डायमेंशन और इसमें बसती है, वो है स्थानीय लोगों की प्रतिभागिता, लोकल पार्टिसिपेशन। वो जब तक नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें हम लोग आगे नहीं लेके जाएंगे। तो हम लोगों ने इसमें एक डायमेंशन और इसमें ऐड कर दिया। इसमें सबसे पहले बैठक हमारी, जो हमारे आदरणीय भंते जी हैं यहाँ पे, आपकी पूरी जो टीम है, हम लोगों ने जो लोकल हमारे जो मोनेस्ट्रीज हैं, अलग अलग जो मंदिर हैं, उन सब जगहों से हम लोगों ने वहां के लोगों को बुलाया। और मुझे याद है कि पहली बैठक मैंने आया और मैंने पूछा कि ऐसा कुछ प्लान है, ये सब करने का हमको दायित्व मिला है, क्या हम जनपद के रूप में तैयार हैं? क्या आप और हम सब एक पेज पे हैं, इस काम को करना चाहते हैं? तो मुझे इस बात को बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जो यहाँ पे काफी लोग बैठे भी हैं, काफी हमारे बंदेगण यहाँ बैठे भी हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत इसको कम समय में इसको इतना अच्छा प्लान कराने में हमारी बहुत मदद की है। तो इसके लिए मैं सभी हमारे जो सम्मानीय बंदेगण हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा चैलेंज था कि इन सारे चीजों को हमें कोऑर्डिनेट करना है, हमारे जो मेहमान होंगे उनको कैसे इन्वाइट करना है। इसके लिए कई लोगों ने हमारी मदद की। इसमें हमने जो एमईए में एशियान डेस्क है वहां पे हमने संपर्क किया, वहां से हमको आरआईएस के बारे में जानकारी मिली। तो मेरे लिए भी बहुत कुछ नया था, सीखना था मुझे भी। तो आरआईएस की जो एक गवर्नमेंट थिंक टैंक है, वहां से सचिन जी हैं, डीजी हैं वहां पे पंकज वशिष्ठ हैं, उनसे मेरी बात हुई। वो आए भी थे हमारे कॉन्क्लेव में। मुझे पता नहीं अब यहाँ बैठे कि नहीं बैठे, अगर बैठे हो तो हाथ खड़ा करें। हालांकि मेरी आज भी उनसे बात हुई थी। उसके बाद आईबीसी से हम लोगों ने संपर्क किया। आईबीसी में पोर्शिया हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पे, वैशाली और बाकी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने भी पूरा हमें सहयोग किया। इसके अलावा अहमद ने हमें बहुत मदद की यहाँ पे। जो आज का जो बल्कि सेशन है, ये सारा का सारा कोऑर्डिनेट करने में अहमद की भूमिका बहुत बड़ी है। और जो आसपास जितने भी लोग हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी भी हो रही है कि गोरखपुर से भी काफी लोग हैं, शोभित हैं, अभिषेक को भी देख पा रहा हूँ मैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो इस इंडस्ट्री से और इस पूरे बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं। तो जो 3 शब्द थे, मैं उसके ऊपर दोबारा आता हूँ कि जो धम्म है वो धर्म के बारे में बात करता है, धर्म के बारे में बात करता है। तो जब बुद्धिज्म की बात हो और धम्म की बात ना हो तो वो बेमानी होगा। तो हम लोगों ने कहा कि पहला जो दिन होगा वो पूरा का पूरा डेडिकेट करेंगे हम धम्म को, और उसमें हम बुद्धिज्म की फिलॉसफी, हम बुद्धिज्म की टीचिंग्स, उन सब चीजों को हम सुनेंगे। और हमने ये भी तय किया कि इस पूरे कार्यक्रम में प्रशासन जो है मेन लीड भूमिका में नहीं रहेगा, प्रशासन इसमें बैक स्टेज पे रहेगा। और मैं बार बार अपने बंदेगणों को कहता हूं, ये कार्यक्रम आपका है, आपको तय करना है। कुछ खराब हो रहा है तो उसको ठीक भी आप ही करिए,
और आप ही इसको हम लोगों को गाइड करिए, क्योंकि हम लोग भी पहली बार कर रहे हैं। अगले सालों के लिए हमें भी सीखना है इसमें कि और बेहतर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमेशा आप लोगों की तरफ से भी मुझे ये मिलता रहता है कि नहीं, इसको और बेहतर तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में धम्मा का दिन जो पहला दिन था, उसमें हमने बुद्धिज्म, इनकी टीचिंग्स, इन सब चीजों पे फोकस किया। हमारे पास में बहुत सारे मेहमान आए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, पैनल डिस्कशन हुए, सेशंस हुए, धम्मा डायलॉग एंड डेवलपमेंट को थीम रखा गया बात करने के लिए। तो पूरा दिन हमारा धम्मा के ऊपर गया। आज जो सेकंड डे है, आज की शुरुआत चैंटिंग से हुई, कल भी चैंटिंग हुई थी। हम लोगों ने कार्यक्रम भी अलग अलग जगह रखे हुए हैं। एक कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, एक कार्यक्रम बगल में शांति उपवन है, वहां पे भी वो भी सर की वजह से ही हम लोग डेवलप कर पाए थे। शांति उपवन में हम लोगों ने जनपद के सारे स्कूल्स के बच्चों को हमने वहां पे जोड़ रखा है। हाँ, तीनों दिन जो है हमारे विभिन्न स्कूलों के बच्चे आते हैं और वो शांति उपवन में, क्योंकि वो बहुत सेफ एनवायरनमेंट है, पेड़ों के नीचे बैठ के बच्चे, कल लगभग 500 बच्चों ने बुद्धिज्म के ऊपर पेंटिंग की है और वो सारे पेंटिंग्स हम लोगों ने जिन्होंने प्राइज मिला है उनको रखा है, वो हम लोग डिस्प्ले भी करेंगे आने वाले समय में। उसके बाद आज का जो है, आज डिबेट कंपटीशन बच्चों का है। लगभग 500 बच्चे अभी शांति उपवन में, हमारे बगल में हमारे टीचर्स, हमारे डिपार्टमेंट के लोग वहां पे बच्चों के हाथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और वो इसके ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिता के रूप में आज प्रतिभाग कर रहे हैं। कल जो होगा वो ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन रखा गया बच्चों का। तो हम लोगों ने बच्चों को, स्कूली बच्चों को भी इसमें एंगेज किया है और वो पैरेलली शांति उपवन में वो सारे काम अभी चल रहे हैं। तीसरा जो है रामा भारत स्तूपा है, उस पर भी हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम रखे और कुछ कार्यक्रम जो यहाँ पे ASI के भी अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, गाइडलाइंस है, उनका भी हमें सम्मान करना है और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए और लोकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक चौथा डायमेंशन लोकल पार्टिसिपेशन भी है, तो उसके लिए जरूरी था। अपने कृषि विश्वविद्यालय बगल में है, वहां पे हम लोगों ने जर्मन हैंगर लगाया हुआ है। बहुत सारे हमारे शिक्षक सम्मेलन, हमारा युवा सम्मेलन, हमारे स्वास्थ्य विभाग का सम्मेलन, इस प्रकार के प्रशासनिक जैसे कार्यक्रम भी हमारे बगल में जर्मन हैंगर में डेली हमारे कार्यक्रम चलते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम हम लोगों ने 3 से 4 जगह पे बांट के किया और जैसी जिस कार्यक्रम की गरिमा है उसके हिसाब से उन चीजों को हमने ठीक से उपयोग किया। तो ये एक हमारे लिए सीख थी। तो जो सेकंड थीम था वो था डेवलपमेंट। आज का जो दिन रखा है, जैसे चैंटिंग हम लोगों ने पहले दिन हमारे सभी जो हमारे मॉन्क्स यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोगों की वजह से एक जो माहौल बना यहाँ पे चैंटिंग का सुबह सुबह, एक यहाँ पे महापरिनिर्वाण स्थली में देखने को मिला। दूसरा, आज की जो चैंटिंग थी वो रामा भारत स्तूपा पे देखने को मिली। और कल जो हम लोग अपनी चैंटिंग करेंगे वो शांति उपवन में प्लान की है। तो तीनों दिन चैंटिंग का वेन्यू भी हम लोगों ने अलग अलग रखा ताकि उस सारे माहौल को हम लोग अपने अंदर उतार सकें। उसके बाद आज सर आपने कहा वॉक पीस, सर हम लोगों ने आज रन फॉर पीस भी किया। यहाँ पे हमने अपने बच्चों को इनवाइट किया, हम लोगों ने उनको रन फॉर पीस की एक बुद्धा पीजी कॉलेज से लेके और हमारा रामा भारत स्तूपा तक हम लोगों ने 3 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता भी सुबह हमने यहाँ पे आज सुबह ही आयोजित कराई सर। उसके बाद सर आज का जो दिन हम लोगों ने रखा वो विकास के ऊपर फोकस था। तो आज देखिए कौन कौन लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं देख रहा था कि फिक्की से लोग हैं, मैं देख रहा था कि बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे यहाँ पे ट्रेवल मैगजीन के लोग हैं, मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो हमारे बुद्धिज्म से जुड़े हुए लोग हैं वो तो है ही 3 दिन हमारे साथ, लेकिन हर सेशन में हमारे पास में अन्य लोग भी जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री से भी काफी लोग यहाँ पे मुझे बताया गया कि उपस्थित हैं, मुझे लगता है कि बैठे भी होंगे यहाँ पे। उसके बाद में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे यहाँ पे व्यवसायी हैं। आज मॉर्निंग में भी हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग को, क्योंकि ये जो जनपद है वो अग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारी खेती यहाँ पे होती है, तो हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कैसे जोड़ सकते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के साथ में। आज फर्स्ट हाफ के सारे सेशन हमारे फूड प्रोसेसिंग के ऊपर थे, सेकेंड हाफ के सेशन सारे टूर ऑपरेटर्स और इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म को लेके। पर्पज क्या है, टूरिज्म के माध्यम से यहाँ पे लोग आए, हम अपनी फिलॉसफी को भी आगे बढ़ाएं और फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के साथ साथ में हम अपने एरिया का डेवलपमेंट भी करें, अपने लोगों का भी डेवलपमेंट करें, ये इसका पूरा फोकस है। और तीसरा दिन जो कल का रखा है वो डायलॉग को समर्पित है, संवाद को समर्पित है। उसमें हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से, क्योंकि मेरा मानना है कि और बुद्धिज्म फिलॉसफी भी कहती है कि संवाद ही अंतिम समाधान है, बातचीत करके ही सारे मसले आपके सुलझ सकते हैं। मैं इसको बड़े लाइट मूड में भी कहता हूं कि चाहे घर में पति पत्नी की बात हो, चाहे वो 2 देशों के झगड़े हों, सारे झगड़े जो हैं आखिरी में टेबल पे बैठ के बातचीत के माध्यम से ही सुलझते हैं। और ये फिलॉसफी बुद्धिज्म फिलॉसफी हमें सिखाती है।
तो संवाद ही अंतिम समाधान है, ये एक थीम रखा है। और एक थीम जो है कि ये समय जो है वो युद्ध का समय नहीं, ये बुद्ध का समय है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ये समय जो है वो बुद्ध का समय है, युद्ध का समय नहीं है। हमें ये जो वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, इससे हटके हमें शांति की तरफ हमें आगे बढ़ना है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा इस बात को आगे रखते हैं कि कैसे हम अपने लोगों का, अपनी संस्कृति का कैसे विकास कर सकते हैं। इसी दिशा में ये सारा का जो आयोजन किया गया है, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं संक्षिप्त रहूं और सारी बातें आप तक पहुंच जाएं कि हम लोगों ने इसके पीछे का क्या भाव था। अब मैं आता हूं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में मेरा जो रोल है। अभी तक मैंने अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के रूप में अध्यक्ष के रूप में मेरे क्या दायित्व है और हम लोगों ने क्या किया है वो बात आपके सामने रखी है। अब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या जिला अधिकारी के रूप में मेरे जो दायित्व हैं, मैं उनके बारे में अगर बात करूं तो सर मैं सीईओ कसाडा के रूप में भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो कसाडा जो है वो कुशीनगर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इस कसाडा का जो गठन किया गया है वो इसी पर्पज के लिए किया गया था कि हमें बुद्धिज्म टूरिज्म के आसपास के कुछ विकास अगर करने होंगे तो वो कौन सी एजेंसी करेगी, तो उसके लिए कसाडा का गठन शासन के द्वारा किया गया। और इस प्रकार के 4 स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरे प्रदेश में काम करती हैं। उसमें से एक कुशीनगर में है और एक जो है अभी सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु के नाम से है, एक सोनभद्र में है और एक चित्रकूट में है। तो ये 4 स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती हैं। इसकी हमने जो लास्ट बैठक की, उस बैठक में हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए। वो प्रस्ताव बताने भर से ही आपको पता लग जाएगा कि जिला प्रशासन और कसाडा किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पहला एक स्टेप रखा कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत हमें 2 टाउनशिप इस जनपद को हमें देनी चाहिए और इसके ऊपर हम लोगों ने डीपीआर बनाना शुरू कर दिया है। अगली बोर्ड बैठक में संभवतः ये प्रस्ताव जैसे ही हम रखेंगे पास होकर शासन में जाएगा और प्लानिंग के साथ में डेवलप्ड अगर टाउनशिप यहाँ पे आएगी तो आने वाले समय में जो बाहर के लोग आते हैं उनको बहुत सारे मैग्नेट के रूप में वो काम कर सकते हैं। लोग अपना रहने का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ नई नई चीजें यहाँ पे डेवलपमेंट के रूप में आ सकती हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रस्ताव हम लोगों ने पास किया वो एक रिजोर्ट सिटी का प्रस्ताव पास किया। एक रिजोर्ट सिटी प्रस्ताव के रूप में कैसे काम करेगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक होटेलियर के लिए 250-300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना जब सीजनल टूरिज्म होता है तब बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सीजनल टूरिज्म में 3 महीने 4 महीने हमारे जो पिलग्रिमेज है या टूरिस्ट हैं वो आते हैं, तो उसके बाद वो क्या करे, वो पैसा जो कहां से मेंटेनेंस का निकाले। तो इसके लिए हम लोगों ने एक अल्टरनेट निकाला कि एक तरफ तो हम पूरे साल हमारे टूरिस्ट कैसे आए इसके ऊपर काम करें और दूसरी तरफ हम ये काम करें कि अगर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आ सकती है तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट एक रिजोर्ट सिटी में लाई जा सकती है। अगर 100 एकड़ की एक रिजोर्ट सिटी हम लोग यहाँ प्लान करें तो 5 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़ में छोटे छोटे बैंक्वेट हॉल, रिजोर्ट्स ये सब वहां पे बन सकते हैं और 8 से 10 करोड़, 5 से 10 करोड़ की रेंज में इन्वेस्टमेंट करके, छोटी इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे लोगों को हम जोड़ सकते हैं टूरिज्म के साथ में, बुद्धिज्म के साथ में और यहाँ के रोजगार के साथ में। इसके लिए हमने एक रिजोर्ट सिटी का प्रस्ताव भी कसाडा के माध्यम से पास किया है। आज ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो लोग भी इसमें हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो अभी आने वाले समय में कुशीनगर प्रशासन के साथ में, कसाडा के साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी जब कुछ दिन पहले कुशीनगर आए थे तो उन्होंने इस बात का हमें एक मार्गदर्शन एक तरह से प्राप्त हुआ मुझे कि उन्होंने कहा कि गाइड्स जो है ना बहुत प्रोफेशनल होने चाहिए, उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो गलत बात हमारे बाहर के आने वाले मेहमानों को ना बताएं, वो फैक्ट्स, उनके फैक्ट्स जो है वो बहुत ठीक होने चाहिए। इसके लिए हमको जरूरी है कि प्रोफेशनल गाइड्स हमको बनाने पड़ेंगे और उसके लिए एक लिंग्विस्टिक स्कूल का प्रस्ताव भी हम लोगों ने कसाडा के माध्यम से पिछली बैठक में पास किया है और आने वाले समय में हम लिंग्विस्टिक स्कूल भी बनाएंगे जो बुद्धिस्ट सर्किट के जितने भी साइट्स हैं उन सारी साइट्स के लिए हम यहाँ पे अपने कुछ बैचेस बनाएंगे जहां से यहाँ से बच्चे पढ़ के कुछ गाइड्स डेवलप होंगे और वो अलग अलग बुद्धिस्ट साइट के ऊपर जाके अपनी सेवाएं दे सकेंगे। तो ये हम लोगों ने एक प्रयास किया है। तो इसी प्रकार जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन है वो तो टूरिज्म डिपार्टमेंट करता ही करता है और हम लोग उसको साथ में मिलके उसको काम को पूरा भी करते हैं, एग्जीक्यूट करने का काम हमारा ही है। लेकिन इसके साथ साथ में कसाडा के माध्यम से भी हम इन सारी चीजों को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बात कहते हैं कि विकसित भारत की जब हम लोग बात करते हैं 2047 में, तो विकसित उत्तर प्रदेश की बात हमारे सीएम सर करते हैं और उसी में विकसित कुशीनगर के पूरे विजन को इन चीजों से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए भी हम लोगों ने अपने कुछ प्लान किए हैं और कैसे
कुशीनगर की इकोनॉमी में टूरिज्म इकोनॉमी जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है और कैसे हम बुद्धिज्म एज ए फिलोसफी को आगे प्रमोट कर सकते हैं, इन सारी बातों को देखते हुए हम लोग अपना एक प्लान भी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसको बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे और मैं या मेरे बाद जो भी अधिकारी रहेंगे वो उस पूरी एक फिलोसफी को, पूरे एक विजन को लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने कहा कि राजलिंगम सर ने एक बात कही, आज हम लोग उसको अपने तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बाद भी जो लोग आएंगे इन सारी चीजों को अपनी तरफ से कुछ और नया ऐड करके इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बुद्धिज्म भी एक आइडिया है जो 2500 साल से, अगर आप और आपके और हमारे माध्यम से ये आइडिया हर साल हर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, तो ये सारी बातें भी जो हैं आगे बढ़ेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना क्लियर विजन है गवर्नमेंट का और डिस्ट्रिक्ट का, और महेंद्र जी मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर द काइंड ऑफ एफर्ट्स जो इन्होंने लिए हैं। एक इकोनॉमी का डेवलपमेंट, इकोनॉमी का एनहांसमेंट जो है सारी चीजों से नजर आ रहा है। और जब इकोनॉमी हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, किसी भी जगह की ठीक होती है तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वो एक राइट पाथ पे ऑटोमेटिकली चलने लगते हैं। तो जितना भी पूरा विजन है टूरिज्म सेंट्रिक है, जो एक इकोनॉमिक सेंट्रिक है यहाँ पर, और बहुत ही एक अच्छे प्रयास इस जगह पर हो रहे हैं। और काश आपकी बात लोग सुने कि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफीज हैं उसको, जो नॉन बुद्धिस्ट स्टेट्स हैं वो जो आज कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं, वो उसको काश वो उन तक मैसेज पहुंच पाए बुद्धिज्म का, और वो उसको इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो कर सकें और हम सब लोगों को शांति मिल सके इस कॉन्फ्लिक्ट के प्रकोप से। So thank you very much for your comment, much appreciated, and I must compliment you for all the marvelous arrangements that the district has made for all the delegates. आपने एयरलाइंस की बात करी, हमारे पास इंडिगो, हमारे पास एयर इंडिया, हमारे पास एयर इंडिया एक्सप्रेस, तीनों ही एयरलाइंस के यहाँ पर लोग हैं जिनको हम आज कन्विंस करने वाले हैं अगले सेशन में कि जल्द से जल्द इसका जो आपका कुशीनगर एयरपोर्ट है वहां से फ्लाइट शुरू हो और कैसे शुरू करी जा सकती है। So this will be our gift for the district of Kushinagar that you will get for sure in near future. Thank you very much. So we also have Kailesh Kumar. Kailesh Kumar जो हैं वो एक एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स एक हेड करते हैं, जिसमें जो वो टूर ऑपरेटर्स जो बुद्धिस्ट कंट्रीज से यहाँ पर पर्यटकों को लाते हैं, पिलग्रिम्स को लाते हैं, और बहुत समय से एक बुद्धिस्ट ट्रेड के साथ खुद भी जुड़े रहे हैं। तो एक शॉर्ट में हम चाहेंगे कि वो क्या चीजें हैं कुशीनगर के कॉन्टेक्स्ट में जो आज, because you have a powerful man as a district magistrate. I feel that district magistrate is the most powerful of the bureaucratic circle when in a district. What are the things that you demand from the district magistrate for your tourists, for your guests, for the tourists and guests who are being brought by your member operators to Kushinagar specifically? बहुत संक्षिप्त में इस चीज का जवाब दीजिएगा। Thank you very much. टूरिज्म रिप्रेजेंट कर रहा था, और उसी के बाद हमारे
चल लगा कि सारा बुध गया, कुशीनगर करना है। लेकिन हम कहां पे हैं? यूएनडीपी में, यूनाइटेड नेशन ने रिक्वेस्ट भी नहीं किया। लेटर पीएमओ से हमें भिजवाइए, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो सर आपसे सर, क्योंकि जितना एनर्जेटिक है, मैं तो बहुत ओल्ड हो चुका हूँ, 54 एज है सर, थोड़ा ये आप करिए सर। और दूसरी चीज है कि आज 1 तारीख है, 1 मई को क्या है? बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा में क्या हुआ था? बुद्ध पूर्णिमा में जब भगवान बुद्ध का यहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था, तो पूरा शहर जो है कमल के जैसा एक फूल होता है, उससे देवताओं ने बिछा दिया था। और उसी को एक जैन मुनि लेकर के जा रहे थे, और महाकश्यप जी पावा में मिले, और उनका होता है ना, लेडीज को आंख फड़फड़ाने लगता है, ताकि लगता है कि कोई कुछ घटना हुआ है। तो महाकश्यप जी 500 भिक्षुओं के साथ वहां पे थे, वो साइड हुए और उन्होंने देखा कि कुछ न कुछ घटना हुआ है। तो देखिए, एक नाइकेड साधु एज ए जैनिज वो आ रहे हैं, उनसे पूछा, भंते क्या आप मेरे शास्ता या मेरे भगवान को आप जानते हैं? बोला हाँ हाँ, 1 हफ्ता पहले उनका कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ, और पूरा शहर देवताओं ने फ्लावर से उसको कवर्ड कर दिया है, उसी में हम एक फ्लावर हम लेकर के आए हैं। मैं सर से निवेदन करता हूं कि 1 मई को कुछ नहीं, वो पुलिस वाला ड्रेस नहीं, बंदूक वाला ड्रेस नहीं, एक वो क्या बोलता है, पीआर वाला ड्रेस से सारे प्रशासन यहाँ पे कम से कम 200-400 रहे, जो भी गेस्ट आए एक फूल से भैया यहाँ रामाभार में ये सब करें, तो थोड़ा सा एक बढ़िया मैसेज आएगा। तीसरा चीज हम बोलना चाहते हैं, कुशीनगर सेक्रेट प्लेस क्यों है? अभी बॉस ने बताया कि शांति का मेन फाउंडेशन कहां से हुआ? जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो 8 राजा आपस में लड़ने लगे, तो द्रोण मगध से आकर के वो यहीं पे शांति का वो देखिएगा पीपल के ब्रिज पे जहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो ये भी जाता है। प्लस हम लोगों ने त्रिपिटक की भी चर्चा नहीं की है। त्रिपिटक का स्टार्टिंग पॉइंट कहां रहा? क्यों महाकश्यप जी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करना चाहते थे? संगीति, संकायन क्या होता है? संकायन मतलब उस समय हमारे पास लिटरेचर नहीं था, 200 साल के बाद अशोक का ही लिटरेचर हमें मिलता है। संकायन मतलब कान से सुन करके आपस में एक दूसरे को बताना। तो यहाँ पे महाकश्यप जी जब ब्राह्मण ने वो कहा कि ठीक मर गए भगवान बुद्ध, अगर नहीं तो फिर ये हम क्या करते, ये कहते थे डू दिस यू डोंट डू दिस। तो महापरिनिर्वाण के बाद जो 3 महीने के बाद राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, ड्यू टू यही महाकश्यप जी अनाउंस किए कि 3 महीने के बाद हम सारे बुद्धिस्ट मिलकर के राजगीर में एक संगीति करेंगे, और भगवान बुद्ध क्या बोले उसको हम लोग संकायन करेंगे, और ये यहीं से शुरुआत हुई। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ बहुत सारे सर ने अभी ककुता रिवर, हिरण्यवती रिवर, फैजल नगर जिसको पावा कहते हैं, बहुत सारे डेस्टिनेशन है सर। आपने लुम्बिनी में जो है रामनगर, तो वो सब कर रही है। लेकिन यहाँ पे बगल में सर बिहार का एक बॉर्डर है जहाँ पे लौरिया नंदनगढ़ अरे राज है सर, इसको करके एक हम ग्रेटर कुशीनगर अगर करते हैं सर, बहुत अच्छा सर। गोरखपुर में लगभग 200 ट्रेन आती है सर, 50 किलोमीटर दूर है ये सर, एक छोटा सा ट्रेन इसको लेकर के गोपाल से कनेक्ट कर दीजिए सर, और थोड़ा बड़ी मेहरबानी होगी सर। और बुद्धिज्म का अगर फाउंडेशन कहीं है, क्यों फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, 1 मिनट और सर प्लीज, क्यों फाउंडेशन ये हुआ? क्योंकि 50 साल पहले जैनिज्म, महावीर जी की मृत्यु हो गई और जैनिज्म बिखर गया। महाकश्यप जी देखते थे, जानते थे कि अगर यही हो जाएगा, हाल रहेगा बुद्धिज्म का, इसीलिए भगवान बुद्ध ने क्या क्या कहे। इसीलिए देखिएगा त्रिपिटक जब पढ़िएगा तो एक बार मैंने ऐसा सुना, ये कहते हैं, आनंद कहते हैं, उसके बाद ये किया गया। तो त्रिपिटक का भी फाउंडेशन ये यहाँ से हुआ, जो एक बुद्धिज्म का मिरर है। आज जितने कंट्रियों में आप देख रहे हैं बुद्धिज्म, इसी के कारण है। और हमारे टूर ऑपरेटर बनारस से आए हुए हैं और सब जगह से, और बॉस टूर ऑपरेटर तो यहीं पे हैं। और जब भी 15 साल पहले आइटो में जब भी हम कहते थे सर आज के इस
दूसरे दिन है ना, दूसरे दिन के समस्त आयोजन के इस शुभ अवसर पर हमारे प्रमुख सचिव श्री मुकेश मेश्राम जी, मैं समझता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में अगर अनुभव का भंडार कहा जाए तो हमारे मुकेश मेश्राम जी के पास है, और उस भंडार से कुशीनगर को अगर बराबर आपके अनुभव का लाभ और आपका स्नेह मिलता रहे तो कोई कारण नहीं जो हम लोगों का और माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि इस कुशीनगर के बौद्ध सर्किट एरिया के पर्यटन विकास को अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने का, वो अवश्य हम लोग पहुंचाएंगे। और विकासशील केवल जनप्रतिनिधि नहीं होते, अपने सामाजिक जीवन के लगभग 25 वर्षों में बहुत से जिलाधिकारी इस जनपद में आए और बहुत से चले गए, लेकिन एक जिलाधिकारी जो केवल अपने ऑफिशियल वर्कों को ही जिम्मेवारी समझते हैं और कोई अधिकारी अपने जिम्मेवारियों को और भी दायरा विकसित करके और कुछ ऐसा कर जाते हैं, जैसे अभी आप एस राजलिंगम साहब का नाम ले रहे थे, तो ऐसे ही हमारे महेंद्र सिंह तंवर जी भी कुशीनगर के पर्यटन विकास के लिए, कुशीनगर के विकास के लिए, कुशीनगर के असहाय परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। मैं आपका भी बधाई देता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। कितना सुंदर आयोजन ये 2026 इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का जो कार्यक्रम आपने कराया पहली बार, हम समझते हैं अगली बार आप जब कराएंगे तो उसमें थोड़ा और समय लेके और इसी कार्यक्रम को और भी हम लोग बृहद रूप देकर पूरे देश में इस कार्यक्रम का सम्मान पहुंचाने का कार्य करेंगे। और फिक्की इनॉर्गेशन के आप प्रबंधक और आप जो अभी इस रेल योजना, मैं समझता हूं कुशीनगर के बढ़ते विकास में एक बड़ा विकास यही बचा भी है। अभी पिछले सत्र में भी मैं उठाया था अपने सदन में, और कल भी मेरा माननीय देवरिया के सांसद शशांक मणि जी से इस पर चर्चा हो रहा था कि सरदार नगर से हेतिमपुर तक मीटर गेज की लाइन जो थी उसकी भूमि आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के निहित है। क्यों न उस पर टॉय ट्रेन चलाया जाए, तो उसका टूरिज्म से भी लाभ मिलेगा और यात्री को भी लाभ मिलेगा। जैसा हो इस पर हम लोग आपस में विचार करेंगे। आज के अवसर पर यहाँ पर सभी अपने बौद्धिस्ट सभी भंते गणों का और क्षेत्र के आए सभी हमारे सामाजिक क्षेत्र से सरोकार रखने वाले सभी साथी गणों का अतिथि के रूप में आए सभी इस कार्यक्रम में मैं सबका अभिनंदन स्वागत करते और आज के इस कार्यक्रम का विश्राम का घोषणा करता हूं। सिर्फ अगला सेशन फिर अगले सेशन के लिए इस सत्र का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू